Let us see now E and Z isomers. E and Z isomers वैसे isomers में exhibit होता है when the double bonded carbons have all the four groups different. Suppose we have A, B, C, D. So इस तरह के compound में we cannot say cis and trans isomer, right? इसमें हम cis और trans isomer की बात नहीं कर सकते. So because we can't say with respect to two carbon atoms. with respect to two groups present on the double bonded carbon atoms. So इस तरह के compound में हम क्या करेंगे? We have to decide the priority order of both the groups present on each double bonded carbon atom. Suppose priority order कैसे decide करना है ये हम देखेंगे. There is a method. But इस group में suppose इसकी priority आ गई 1 और इसकी priority आ गई 2. अगर मान लीजिए कि इस कार्बन पे जो दोनों ग्रुप लगे हैं उसमें इसकी प्रायोरिटी हो गई 1 और इसकी प्रायोरिटी हो गई 2, तो अगर सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप्स ऑन द सेम साइड है तो इसको कहेंगे Z. In this case, Z is comparable to cis and E form is comparable to trans. So here also similar groups on the same side, similar priority groups on the same side, so we will call it as Z isomer. And similar priority groups on the opposite side, तो हम उसे कहेंगे trans isomer. Such as if this is compound, अगर मान लीजिए इसकी priority है 2 और इसकी priority है 1, तो similar priority group first priority on the opposite side, then it will be called as E isomer. क्लियर? तो अभी सबसे पहले हमें देखना है ये किस तरह के कंपाउंड में होता है. हमने अभी देखा सपोज वी हैव अ कंपाउंड, इन दिस वी हैव अ ग्रुप्स अटैच्ड, सपोज CH3, C2H5, हाइड्रोजन, डिटीरियम. अब इस तरह का अगर केस हो तो व्हाट कैन वी डू? यहां तो सिस और ट्रांस की हम बात ही नहीं कर सकते. सिस और ट्रांस के लिए एटलीस्ट दोनों कार्बन पे एक एटम, एक ग्रुप तो सेम होना चाहिए, isn't it? So उसके रिस्पेक्ट में we can call as cis or trans. But यहाँ तो चारों ही अलग है. तो here we have to decide the priority order, और priority order decide करने के लिए we have a rule that is called Kahn-Ingold and Prelog method. Kahn-Ingold and Prelog method of determining the priority orders. इसको in short CIP method भी कहते हैं. तो देखिए क्या है ये rule. If the group having first atom directly attached to the double bonded carbon is having higher atomic number, it should be given higher priority. Clear? So let us take this example and see. If the group attached to the double bonded carbon ये डबल बॉन्डेड कार्बन से जो दोनों ग्रुप अटैच्ड हैं, अगर मान लीजिए यहाँ है क्लोरीन फ्लोरीन, यहाँ है ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि इफ द ग्रुप आर हैविंग फर्स्ट एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन इज हैविंग हायर एटॉमिक नंबर, इट शुड बी गिवन हायर प्रायोरिटी. फ्लोरीन और क्लोरीन में विच इज हैविंग हायर एटॉमिक नंबर? क्लोरीन इज हैविंग हायर एटॉमिक नंबर, तो क्लोरीन को देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी, फ्लोरीन को देंगे सेकेंड प्रायोरिटी. Among bromine and iodine, which is having higher atomic number? Iodine is having higher atomic number and bromine is having second smaller atomic number. So iodine is first, bromine is second priority. अब देखिए यहाँ similar priority groups on the opposite side है, so this will be E form. Clear? So this first rule से हम decide कर सकते हैं whether it is E form or Z form based upon the priority order, based upon the atomic number of the element which is directly attached to the carbon chain. Okay, now next let's see the next rule. Among the isotopes, the one having higher mass number will be given the higher priority. अब जैसे suppose we have an example, suppose OH, Cl, हाइड्रोजन, डिटीरियम. अब यहाँ दोनों तो सेम ही एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन एंड डिटीरियम बोथ आर हैविंग one atomic number, right? So we have similar atomic numbers. In that case, if isotopes of an element are attached to the carbon atom, to the double bonded carbon, तो हमें priority order decide करना पड़ेगा based upon their mass numbers.
Clear? So we have deuterium, higher mass number will be given first priority, hydrogen will be given second priority. Among OH group and Cl जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है हमें उसे देखना है. तो डायरेक्टली अटैच्ड कौन सा है? ऑक्सीजन. और यहाँ है क्लोरीन. तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, so this is given first and OH is given second priority. तो देखिए now similar priority groups on the same side, so it should be called as Z form. This is clear? Now next see the third rule. If the first atom of the group which is directly attached to the carbon, to the double bonded carbon is same, then next atom should be observed for deciding the priority order. So next rule क्या कहता है? देखिए, when the first atom attached to the double bonded carbon is same, we have CH3 and C2H5. यहाँ मान लीजिए हाइड्रोजन एंड डिटेरियम. तो डिटेरियम और हाइड्रोजन में दिस इज हैविंग हायर मास नंबर, सो हायर प्रायोरिटी. हाइड्रोजन स्मॉलर मास नंबर, सो लेस प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी. C2H5 और मिथाइल ग्रुप. इन C2H5 एंड मिथाइल ग्रुप देखिए यहाँ क्या है? मिथाइल, राइट? मिथाइल. वी हैव कार्बन विथ 3 हाइड्रोजन. और यहाँ क्या है? व्हाट इज दिस ग्रुप प्रेजेंट हियर? यहाँ है एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन, एंड द नेक्स्ट इज 3 हाइड्रोजन. वी आर जस्ट राइटिंग दिस इन एक्सपैंडेड फॉर्म. क्लियर? तो अब यहाँ क्या कर सकते हैं? वी हैव कार्बन हियर. इन दोनों ग्रुप में यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, तो कंपेयर नहीं कर सकते. अगर यहां से कंपेयर नहीं कर सकते तो वी हैव टू प्रोसीड फर्दर. तो हमें नेक्स्ट एटम को कंपेयर करना पड़ेगा. तो नेक्स्ट एटम को कंपेयर करने के लिए देखिए इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है. नेक्स्ट इज हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है. नेक्स्ट यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ है कार्बन. तो हाइड्रोजन और कार्बन को अगर कंपेयर करें तो कार्बन इज गिवन हायर प्रायोरिटी, सो दैट इज व्हाई दिस शुड बी गिवन हायर प्रायोरिटी. सो C2H5 हायर प्रायोरिटी, CH3 लोअर प्रायोरिटी. तो अगर आप atoms which is directly attached to the double bonded carbon से डिसाइड नहीं कर सकते, अगर वो कार्बन वो सेम एटम है, तो यू हैव टू प्रोसीड फर्दर एंड यू हैव टू चेक द नेक्स्ट एटम फॉर डिसाइडिंग द प्रायोरिटी ऑर्डर. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इन अ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कंसिडर इक्विवेलेंट मेंबर्स ऑफ equivalent number of similar atoms, equivalent number of similar atoms by number of bonds. जितने bonds होंगे उतने ही atoms compare करेंगे. Let us understand this with example. अगर मान लीजिए we have a compound जिसमें CH double bond CH2 है, and there is another compound जिसमें है CH2 CH3. तो व्हाट इज दिस? CH डबल बॉन्ड. ये इक्विवेलेंट होगा. देखो एक्सपैंड करके इसको हम लिखते जाएंगे. सो दिस इज C, इसके ऊपर है एक H, और नेक्स्ट कार्बन के जो 2 बॉन्ड्स हैं उसकी वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड है? वी हैव टू सी दैट. इसके जो 2 बॉन्ड्स हैं उसकी वैलेंसी देखिए दोनों पे कार्बन ही प्रेजेंट है, राइट? तो इन दोनों पे कार्बन ही प्रेजेंट है. तो अगर 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो वी हैव टू चेक कि ये दोनों के दोनों डबल बॉन्ड, या हमें ये देखना है कि इस कार्बन की जो एक तो कार्बन से सेटिस्फाइड है, दूसरी बाकी जो 3 वैलेंसीज है उस पे कौन से एटम्स प्रेजेंट है. दैट यू राइट इन द एक्सपैंडेड फॉर्म एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू कंपेयर इट. ओके, सो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और 2 बॉन्ड्स पे कार्बन है. सो वी कैन राइट एक पे हाइड्रोजन हो गया और 2 बॉन्ड्स पे कार्बन हो गया. नेक्स्ट दिस ग्रुप, लेट अस कंपेयर. यहाँ है हमारे पास एक कार्बन, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है एंड नेक्स्ट एक ही कार्बन है. तो कौन सा ग्रुप ज्यादा हायर प्रायोरिटी होगा? देखिए यहाँ एक हाइड्रोजन 2 कार्बन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन है, तो दिस हैज टू बी गिवन हायर प्रायोरिटी. सो दिस इज higher priority, first priority, and this is second priority. Now here first priority on the opposite side, so we can call it as E form. I hope it is clear. समझ में आ गई बात?
So I hope this Kahn in gold and Prelog method is clear. अब ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला जो केस है उसको थोड़ा सा और एक प्रैक्टिस करते हैं with few examples so that ये ज्यादा क्लियर हो जाए. The clarity of this is very important. CH double bond CH2 and C triple bond CH. If you compare these two, let us say ClBr. So ClBr में bromine is given higher priority, तो bromine को first दे देंगे, chlorine को second. Among this, let us see the equivalent. ये किसके equivalent है? यहाँ carbon पे एक this carbon and here we have this carbon. We are comparing these two carbons. इस कार्बन पे देखिए क्या है, एक हाइड्रोजन है और दो बॉन्ड्स किससे सेटिस्फाइड है? कार्बन से. इस कार्बन पे क्या है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है और तीनों बॉन्ड्स किससे सेटिस्फाइड है? कार्बन से. सो दिस शुड बी गिवन हायर प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी. आई होप इतनी बात समझ में आ गई. क्लियर टू एवरीवन? तो हियर सिंस सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द सेम साइड, तो इसे हम क्या कहेंगे? दिस विल बी Z फॉर्म. तो जब भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स का चक्कर हो तो थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना जरूरी है. डबल और ट्रिपल बॉन्ड में यू हैव टू बी अ लिटिल अलर्ट. तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है? जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो फिनाइल ग्रुप्स की प्रायोरिटी बहुत हायर होती है, क्योंकि फिनाइल ग्रुप्स में देयर इज अ साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर एंड यू कैन जस्ट सी हियर, यहाँ कार्बन है, इस बॉन्ड पे तीनों कार्बन एटम्स लगे हैं, right? So phenyl group is given higher priority, then the priority is given to C triple bond CH, then priority is given to CH3 whole thrice, then the priority is given to CH double bond CH2, CH2, इसके बाद प्रायोरिटी होती है CH3 whole twice, इसके बाद प्रायोरिटी होगी CH3 CH2 and then CH3, right? So among various alkyl groups ये ऑर्डर होगा. आप इसको प्रायोरिटी ऑर्डर इसको एक्सपैंड करके लिखकर चेक करके देख सकते हैं. Is it clear? So like this you have to practice more problems based upon E and Z nomenclature, and this is all about E and Z nomenclature.